Hello, my dear students. This is Chetan sir. So my qualification is I'm a physics lecturer working at class 11 and class 12 college. Present college name is Chetna PU College where I'm working. And my dear kids, so my post graduation MSc Physics. So I have completed MSc Physics and my specialization is spectroscopy. So I have completed my post graduation at Karnataka University of Dharwad. So basically, the short form of this is KUD, one of the finest universities in our country. So my dear kids, so today I'm going to give explanation on the syllabus of the NDA as well as NA. So how we are going to give the entrance examination for NDA. Okay. So detailed explanation will be made in the second video of this NDA section. Now the first video will be, it will be in brief type. It will be not in complete detailed version. Fine. So my dear kids, entrance examination. So this entrance examination will be conducted for class 11 and class 12 students for NDA and NA with age restrictions. So some particular specific uh, type of age students can give this exams for 2 to 3 attempts. So NDA, what is the long form of this, my dear kids? N stands for national, D stands for defense, A stands for academy, National Defense Academy. NA is nothing but it's a naval academy. So my dear kids, the purpose of forming these two academies to make best officers of our commanding forces. Okay, of our commanding forces in the sense armed forces. Fine. My dear kids, NDA, it produces army level officers, air force level officers, naval level officers. Fine. So these three officers will get produced at NDA. Okay, means these officers will get trained to become best officers at Army, Air Force, as well as Naval Academy, naval level officers. Okay, and the NA is the academy, naval academy. This academy will produce Navy officers separately. Fine. So basically, for these two, UPSC will conduct a single exam that is called as entrance examination of NDA or NA. But what is basically UPSC stands for? The long form of this is Union Public Service Commission. Union Public Service Commission, UPSC stands for. Fine. So we are going to see the method or type of exams conducted by UPSC for NDA and NDA or NA. Fine. So basically there will be
टू पेपर्स माय डियर किड्स, दो पेपर्स होते हैं एनडीए और एनए, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी वालों के लिए। तो वो कौन से पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनडीए है और एनए जो कि आप कहते हो, ठीक है। तो इसके लिए कितने पेपर्स होते हैं बच्चों? एक होता है आपका पेपर 1, ठीक है। तो पेपर 1 क्या होता है? पेपर 1 विल बी कंसर्न विद मैथ्स। प्योरली पेपर 1 में क्या रहेगा बच्चों? मैथ्स रहेगा। तो अभी इसका जो पेपर 2 होगा ना एनडीए का, पेपर 2 जो होता है वो किसके बारे में होता है? जनरल एबिलिटी टेस्ट उसको कहते हैं, ठीक है। तो पहला पेपर जो होता है वो मैथ्स पे होता है, दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट पे होता है। तो बच्चों इसमें जो पेपर 1 में है प्योरली मैथ्स मिलेगा, लेकिन जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि पेपर 2 है, इसमें क्या रहेंगे बच्चों आपको पता है? इसमें होगा दो पार्ट्स। एक होगा पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 जिसमें होगा आपको क्या मिलेगा? जनरल इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। मतलब जो पार्ट 1 रहेगा पूरा का पूरा इंग्लिश पे रहेगा। और जो ये पार्ट 2 है किसमें? जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? इसमें इसमें मिलेगा बच्चों जनरल नॉलेज, ठीक है। ये क्या रहेगा? पूरा जो पार्ट 2 रहेगा वो जनरल नॉलेज पे रहेगा। तो जनरल नॉलेज मतलब क्या सर? पर्टिकुलरली किसके बारे में स्टडी रहेगी? इसमें बच्चों आपको सेक्शन ए से लेके सेक्शन एफ तक, ठीक है, ये आपका सेक्शन ए हो गया, ये आपने सेक्शन बी लिख दिया, फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और ये आपका सेक्शन एफ। मतलब आपके 6 सेक्शंस होंगे जनरल नॉलेज में। और ये जो पहला सेक्शन है ना बच्चों, ये किसके बारे में रहेगा? ये रहेगा आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो फिर सेक्शन बी क्या होगा? सेक्शन बी विल बी अपॉन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो सेक्शन सी रहेगा इसमें आपका रहेगा जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस के बारे में रहेगा। और ये सेक्शन डी जो रहेगा ये आपके हिस्ट्री, हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट जो कि हमारे नेशनलिस्ट जैसे कि महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ा था, उसके बारे में स्टडी रहेगा। और सेक्शन ई जो रहेगा वो जियोग्राफी पे रहेगा, ठीक है। और ये जो सेक्शन एफ जो है बच्चों, ये किस पे रहेगा पता है आपको? इट विल बी ऑन कंप्लीटली करंट अफेयर्स। ये क्लियर हुआ बच्चों? आपको तो एक चीज पता चल गई, एनडीए हो या एनए हो उसके लिए हमको एक एग्जामिनेशन देना है, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए और एनए। उसमें दो पेपर्स रहेंगे। पेपर 1 जो रहेगा प्योरली मैथ्स के बारे में रहेगा, और जो पेपर 2 रहेगा बच्चों वो जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। और जनरल एबिलिटी टेस्ट को कैसे बांटा गया है? इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट 1 जिसमें जनरल इंग्लिश को हम पढ़ेंगे, ठीक है, और पार्ट 2 जिसमें हम जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो जनरल नॉलेज क्या होगा बच्चों? उसको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो है वो फिजिक्स के बारे में रहेगा, सेक्शन बी जो है केमिस्ट्री के बारे में रहेगा, सेक्शन सी जो है जनरल साइंस जिसमें बायोलॉजी रहेगा, और बहुत सारी चीजें जो फिजिक्स के एप्लीकेशंस या केमिस्ट्री के एप्लीकेशन जो माइल्ड लेवल पे होंगे वो रहेंगे। और फूड हैबिट्स, ठीक है, तो कैसे कैसे डिवाइड किया गया है चार्ट्स को, उसके बारे में रहेगा। और सेक्शन डी में जो होगा बच्चों, इट विल बी ऑल अबाउट हिस्ट्री। तो इतिहास में क्या हुआ था, इतिहास से हमको क्या सीख लेनी चाहिए, उसके बारे में रहेगा। और बच्चों फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट क्यों जरूरी है? ताकि हम फ्यूचर में फिर से बंधक ना हो पाए, इसीलिए ये एनडीए और एनए के कैडेट्स को सिखाया जाता है, ठीक है। तो सेक्शन ई जो है बच्चों,
वो क्या रहेगा, इट विल बी ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि जब आप ऑफिसर बनते हो, कोई ऑपरेशन को आप तय करते हो, तो ऑपरेशन तय करने के लिए क्या चाहिए आपको, किसी टेरेन को समझना होता है, किसी एरिया या किसी लोकेशन को समझना होता है, तो उसकी ज्योग्राफी कैसी है ये आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। एंड सेक्शन एफ, इट विल बी ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, मतलब कोई देश में क्या चल रहा है, नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल के न्यूज आपको हर रोज अपडेटेड चाहिए, ताकि जब आप अगर कैडेट बनो, कहीं पे आपको उसकी यूज करने की नौबत आ जाए। से फॉर एग्जांपल, आपने एनिमी लाइंस को क्रॉस किया है और उससे आपको आना है, तो सिचुएशन कोई फॉरेन कंट्री, जो आप एनिमी कंट्री में जाके पड़े हो, और उसके बगल में समझो कि आपका कोई फ्रेंडली कंट्री है, उसके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, क्या चल रहा है अभी प्रेजेंटली, वो सारे सिचुएशन आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से आपको निकलना है किसी तरह से। तो बहुत सारी चीजें हैं हमको समझना है नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन होने से पहले या नेवल एकेडमी में ज्वाइन होने से पहले। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे तभी जाके हम ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो ये वाला तो मेरा हो गया पहला वाला वीडियो ऑन द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। दूसरा वाला जो होगा वो डिटेल्ड होगा, पूरा सिलेबस बताऊंगा, क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो पहला वाला वीडियो था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा, ठीक है। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय माय डियर किड्स।